Good morning, all of you. My dear student, today we will start your class 11th history, chapter 9, Industrial Revolution. In this chapter, we have already discussed about that the important points which provoke the protest movement. If you will see my previous video, where I have discussed the particular each points, on the basis of that, you can easily understand that protest movement started. Why? What was the reason behind that? If you will see that video, I have discussed there the conditions of children's and women's in industry, even the condition of worker also, the working hours that was greater than the male workers, the children's and their exploitations that was increased day by day. The women's condition that also that was not so good, and the contemporary actions, the contemporary incidents which happened in Britain, a war. England had been at war with the France for a long time, from 1792 to 1850. The trade between the England and Europe was interrupted. It was disturbed. So that's why the rate of the essential goods that was what? On the very high level. It was not affordable for the peasants that they purchase. वो उन चीज़ों को नहीं खरीद सकते थे जो उनके लिए आवश्यकताएं थी. हर वस्तु की कीमत बढ़ती चली जा रही थी. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम एक तरफ तो इंडस्ट्रियलिस्ट खूब इनकम ले रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे, दूसरी तरफ किसानों, दूसरी तरफ वर्कर्स की कंडीशंस एकदम दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी. वर्कर्स में स्पेशली मेल को छोड़ दीजिए, फीमेल एंड चिल्ड्रन की बात. इफ यू विल माइन्यूटली ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रंस, देयर कंडीशन वाज नॉट so better. They were suffering a lot of problem. Their working hour is very high. Their wages is so less. Their pocket was not affordable to purchase their what? The foods, the grains. The bread rate was high. And these are all things. And if they protest against the industrialists, they were punished by the government also. They have no right to ask for their what? Demand to their masters, I mean to factory owners. They have no right. वो नहीं मांग सकते थे. अगर वो ऐसा करें, if they try to do, they have to punish by government. And even they were not punished by government, they were kicked by the industrialist. If you will see my previous video where I have already discussed about that, the population of the Britain during 1750 to 1850, only two cities during 1750, only two cities in England where population was 50,000. But 100 years, only 100 years, time 1850 till 1850, 29 cities, their population that increased for 50,000. पहले दो शहर थे 1750 में, और 1850 तक आते आते 29 सिटी ऐसे हो गए जिसकी पॉपुलेशन 50,000 के आसपास पहुंच गई थी. ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही थी, क्यों बढ़ रही थी? These are all. You have also point out that I have already discussed about that agriculture revolution. I will not explain again here, but these are points what I mark here, what I remind you, that if you connect all the regions, then you can easily understand the why protest movement started. And the bond matter during that time, the French Revolution happened in France. French Revolution, the time 1789 to 1994, it was contemporary actions of the Industrial Revolution. And the French Revolution, what? On the basis of French Revolutions. If you will read the French Revolution, I hope you will aware of the French Revolutions. You have read French Revolution in class 9th, where the new type of thoughts, new type of ideas that was introduced in France, and it's widespread through whole Europe. The idea of fraternity, the idea of liberty, the idea of equality. The common people, the workers, they felt that they were equal before law
and they have equal right on the resources. So why they suffer that type of problem? And they started to protest again their industry owners, factory owners, industrialists. They asked for their demand, अपने अधिकारों को वो मांगने लगे. और यहां से एक नई परंपरा, नई चीज का सूत्रपात हुआ. The early decades industrialization coincided with the spread of new political ideas pioneered by the French Revolution 1789 to 94. The movement for liberty, equality, and fraternity swallowed the possibilities of the collective mass action, both in creating democratic institutions like France Parliamentary Assembly of the 1719 and in checking the worst hardship of war by controlling the price of necessities like bread. In England, the political protest against the harassed working condition in the factories kept the increasing, and the working population against to be given the right to vote. The government reacted by repression and new law that depending people the right to protest. It means they asked for their rights, but their condition, what? They were forcibly suppressed by, forcibly repressed by the government. The industrialists, the professional, the big landowners, they opposed that the common peoples, what? They were opposed to give the working population the right to vote. Right to vote. They don't want. It means the upper layer of the society, they don't want that right to vote to for the working peoples. अगर वर्किंग पीपल्स को राइट टू वोट मिल जाएगा तो उससे क्या होगी? प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी. और इस प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम बढ़ी. द इंग्लैंड हैड बीन at war with the France for the long time. From 1792 and 1850, the trade between England and Europe was disturbed. Factories were forced to shut down. Unemployment grew and the price of essential items of food like bread and meat soared to high beyond the level of the average wage. That was the reason. That was the main reason for the protest movement. And if you will see the other regions, the Parliamentary Act 1795, which passed the Combination Act, where the freedom of speech and expression that was totally banned, and second, that was no one have right to what? Protest against, no one have right to assemble one place in the amount of 50. That was completely banned by the government. The act has passed, and that also promote the protest movement. Dear student, it is a very interesting matter when you will see परिवर्तन क्यों हो रहे थे, बदलाव क्यों हो रहे थे, एकाएक इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही थी. दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. ये सारे कारण थे इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान प्रोटेस्ट मूवमेंट के लिए. एंड द पार्लियामेंट इन 1795 पास्ड टू कॉम्बिनेशन एक्ट which made it illegal to enact the people by speech of writing and hurted to contempt to the king, constitution or government, and the ban unauthorized public meetings of over 50%. It also promote the protest movement. परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़ने लगी. 1795 का एक्ट, कॉम्बिनेशन एक्ट ने काफी लोगों को प्रभावित किया. अब लोगों को राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट उनसे ले लिया गया. कोई भी व्यक्ति सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाने जैसी कोई भी कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दी गई. दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग 50 से अधिक लोगों को एक जगह असेंबल होना पूरी तरीके से लीगली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल प्रोहिबिटेड कर दिया गया, रोक दिया गया. कोई भी व्यक्ति इतने बड़ी अमाउंट पे एक साथ रुक करके नहीं कर सकते थे. फिर
ये रोक, ये चीज दिखाती है कि ओल्ड करप्शन ब्रिटेन में चलते रहे। when we minutely observe the word old corruption, it means कि ये आंदोलन, old corruption indicate the bonding between the government and the traders, industrialists and the professionals. इनके बीच की बॉन्डिंग को ये ओल्ड करप्शन दिखाता है। ये कंटिन्यू चलता रहा। ये जो भ्रष्टाचार था, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी किसानों ने, वर्कर्स ने अपनी विरोध प्रदर्शनों को जारी रखा। और सबसे बड़ी बात थी कि जो ये लोग थे, जो पार्लियामेंट के मेंबर, यही लोग थे, दे वर सीनियर मेंबर्स। आई मीन टू से दैट प्रोफेशनल्स, द बिग लैंड ओनर्स, the industrialists, they were the member of the parliament and they highly opposed what, कि किसानों को, वर्कर्स को क्या दिया जाए, वोटिंग राइट्स दिए जाए। ये वोटिंग राइट्स कामगार लोगों को, वर्कर्स को जो वोटिंग राइट्स देने के अगेंस्ट थे। और इसी समय एक नियम आया, कार्न लॉज। इन लोगों ने कार्न लॉज का भी समर्थन किया। ये कार्न लॉज, इस कानून के अंतर्गत विदेश से आने वाले सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी, जब तक कि ब्रिटेन में कीमत इनके बराबर न हो जाए। ये कीमत इनके बराबर क्यों हो? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट कमा सकें। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये जो ट्रेडर्स थे, ये अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके, इसीलिए इन लोगों ने कार्न लॉज को सपोर्ट किया। कार्न लॉज जैसे कानून आए, लेकिन ये कार्न लॉज टोटली अगेंस्ट था। किसके हित में? वर्कर्स के हित में। जो कामगार थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, उन लोगों के हितों के अगेंस्ट था। देयर पॉकेट नॉट अफोर्डेबल टू परचेज देयर व्हाट, द इनिशियल गुड्स। आवश्यकता की चीजों को खरीदने के लिए समर्थ नहीं हो पाते थे। इस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। और सबसे बड़ी समस्या तब आई जब इंग्लैंड और फ्रांस 1792 टू 1850 के बीच एक लंबे संघर्ष, युद्ध में पड़ गए। एक लंबा युद्ध चला काफी लंबे समय तक, और ऐसे समय इंग्लैंड की पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। फैक्ट्रियों के दरवाजे, शटर बंद होने लगे, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, और जो नेसेसरी नीड्स थी, रोटी, ब्रेड और मीट जैसी आवश्यक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई। और उससे भी ज्यादा था कि जो मजदूरी का स्तर था, उससे ज्यादा घटने लगे, डेली वेजेस कम मिलने लगे। इन सारी चीजों ने प्रभावित किया। इन सभी चीजों के ऊपर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की घटना 1789 टू 1794 के बीच जो घटना घटी फ्रांस में, इस घटना ने, इस विचार ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, न केवल फ्रांस को ही नहीं। अब वर्कर्स जागरूक हो गए थे अपने अधिकारों के प्रति। उन्हें भी लगने लगा था कि क्यों उन्हें एवरीवन, इफ एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, इफ एवरीवन हैव राइट टू लिबर्टी, सो व्हाई वी नॉट यूज। हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इन अधिकारों का? हमारे लिए ये अधिकार क्यों नहीं है? और फिर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो प्रारंभिक दशक था, प्रारंभिक डिकेड्स थे, वहां पे इस फ्रांसीसी क्रांति ने नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार और प्रसार किया। इसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जो ये आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनों ने ये चीज ही प्रूफ की कि अब वर्कर्स भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। उनके अंदर इस विश्वास पैदा किया। उन्हें ये ऐसा लगने लगा कि वो भी सामूहिक जन आंदोलन चला सकते हैं। 1719 के डिकेड्स तक आते आते फ्रांसीसी संसदीय जो सभाएं थी, जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध ये राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था। और जो वर्कर्स थे, ये लोग अपने वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। दे आस्क्ड फॉर द वोटिंग राइट्स। और इसी वोटिंग राइट्स का विरोध हमने अभी आपको बताया कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, जो बड़े लोग थे, प्रॉस्परस लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, बिग लैंड ओनर्स, they opposed, they denied that parliament, that government gave them voting rights for the workers। इसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि अगर इनके वोटिंग राइट्स आ जाते
तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिकली अपनी बातों को प्रूव कराने के लिए कई सारे रूल्स और लॉ पार्लियामेंट के थ्रू पास करा सकते थे। वोटिंग राइट्स मिलने से इनकी संख्या अधिक थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसलिए ये कहीं न कहीं उनके ऊपर भारी पड़ते और इसीलिए इनका विरोध किया जा रहा था। ये सारी घटनाएं एक साथ विरोध आंदोलन को जन्म दे रही थी, विरोध प्रोटेस्ट मूवमेंट के लिए जमीन तैयार कर रही थी। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या, वर्कर्स की संख्या कारखानों में बढ़ने लगी और उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही थी, तो वे हताशा और गुस्सा में हर तरफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। 79 के डिकेड्स तक आते आते देश में खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ गई, ब्रेड की कीमत, मीट की कीमत, और इससे क्या हुआ, इससे कंडीशन और खराब होने लगी। अब किसान दंगे करने लगे, राइट्स होने लगे। किसानों के बड़े वर्ग ने गरीबों के जो मुख्य भोजन है ब्रेड, वो उस कीमत पे उपलब्ध नहीं थी जिसपे वो आसानी से खरीद सके। तब किसानों ने दंगे किए और उन्होंने ब्रेड के भंडारों पे कब्जा कर लिया। उन्होंने मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमतों पे जो रेट फिक्स की गई थी प्रॉफिट हंगर्स के द्वारा, मुनाफाखोरों के द्वारा, वो काफी ऊंची थी और इन वर्कर्स ने काफी कम कीमत पे उनमें काम करना शुरू कर दिया और वर्कर्स ने इन मुनाफाखोरों के बड़े बड़े ब्रेड भंडारों को लूट लिया। एक एफोर्डेबल कीमत पे उन्होंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किया जो वर्कर्स के हित में भी था। ऐसे दंगे केवल 1795 में नहीं हुए, ऐसे दंगे उसमें तब ज्यादा हुए जब युद्ध काफी चरम पे होता था, महंगाई काफी बढ़ जाती थी। 1795 में ऐसे दंगे बड़े हुए, सबसे बड़े दंगे 1795 में हुए। लेकिन ये दंगे सिर्फ 1795 में नहीं थे, ये दंगे कंटिन्यूसली 814 तक चलते रहे। किसानों के द्वारा बड़े बड़े ब्रेड स्टोरेज पे कब्जा करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक रियायत रेट पे किया गया। परेशानी का एक कारण और भी था, इनक्लोजर। इनक्लोजर इट मीन्स चकबंदी या बाड़ा पद्धति। इसमें 70 की डिकेड तक जो छोटे छोटे सैकड़ों फार्म थे, इन फार्म को एक शक्तिशाली जमींदारों के द्वारा बड़े फार्म में मिला दिया गया। इस पद्धति को बुरी तरीके से वो किसान प्रभावित हुए जो छोटे काश्तकार थे। उनके खेतों को बड़े किसानों की जमीनों में मिला देने से अब वो बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और ये अनएम्प्लॉयमेंसी भी उन्हें प्रोटेस्ट मूवमेंट करने के लिए प्रमोट करने लगी, प्रोवोक करने लगे। उनमें असंतोष उत्पन्न होने लगा। अब इसी के साथ साथ हम एक और कंडीशन देखते हैं, वो कंडीशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसमें हजारों की संख्या में वीवर्स काम कर रहे थे, वो भी बेरोजगार होने लगे। मशीनों के आने से, मशीनों की तुलना वीवर्स की वीविंग मशीन नहीं कर सकती थी। मशीन पतले कपड़े, अच्छे कपड़े बनाते थे, महीन कपड़े बनाते थे। वीवर्स के कपड़े मोटे होते थे। वीवर्स कम कपड़े बना पाते थे, मशीन एक दिन में काफी कपड़े तैयार कर लेती थी, डिजाइनदार कपड़े जिनकी मार्केट में अच्छी रेट मिलती थी। और तब वीवर्स के बुने हुए कपड़े मार्केट से बाहर होने लगे और ये चीजें, ये अवस्था किसानों के हित में, वर्कर्स के हित में नहीं थी, इन वीवर्स के हित में नहीं थी। वीवर्स ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। अब वो विरोध करने के लिए मजबूर भी हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब वो बेरोजगार हुए और गरीबी की मार झेलने को मजबूर हो गए, तो विरोध करना उनका जायज भी था। 79 के डिकेड्स तक आते आते ये जो वीवर्स थे वो अब एक मिनिमम डेली वेज की मांग गवर्नमेंट से की। गवर्नमेंट ने मिनिमम डेली वेज देने से मना कर दिया, डिनाइड कर दिया। गवर्नमेंट डिनाइड टू पे और फिक्स द डेली मिनिमम वेज फॉर द वर्कर्स। एंड वर्कर्स व्हाट, दे बिकम वेरी एंग्री टू द गवर्नमेंट। अपने सरकार से बड़े नाराज हुए और फिर प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। वो वायलेशन के तरफ बढ़ गए। उन लोगों का ऐसा मानना था, वो ऐसा समझते थे कि बिजली के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, पावर मशीन के कारण ही उनका ये पूरा व्यवस्था, ये पूरा व्यवसाय, इनका ऑक्यूपेशन खराब हुआ है। वो हड़ताल किए
और हड़ताल के साथ साथ उन्होंने उन महत्वपूर्ण जो केंद्र थे, इंडस्ट्रियल एरिया से जो मशीन्स थे, लंकासायर के पावर लूम को नष्ट कर दिया। उन्होंने बिजली से चलने वाले कार्गो को भी नष्ट करने का प्रयास किया। उनका ऐसा मानना था कि ये जो बड़े मशीन है, यही उनकी पॉवर्टी, यही उनकी गरीबी, यही उनकी अनएम्प्लॉयमेंसी का मेन कारण है। इसीलिए वो मशीनों को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। गवर्नमेंट ने उनको तितर बितर किया, ब्रूटली उनके ऊपर स्टेप उठाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। तब जब इन लोगों ने लंकासायर, लेसेस्टरशायर, डर्बीशायर में तमाम उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास किया। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वाले जो ढांचे थे, जो शेयरिंग फ्रेम को तोड़ दिया गया। यॉर्कशायर के लोग जो ट्रेडिशनल मेथड से हाथों से भेड़ का ऊन, बालों की कटाई करते थे, उन लोगों का भी रोजगार छीनने लगा। 1830 के राइट्स में फार्म में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगने लगा कि उनका धंधा नष्ट होने वाला है, क्योंकि खेतों से भूसी अलग करने के लिए जो थ्रेसिंग मशीन आ गई, थ्रेसिंग मशीन के प्रयोग से उनका भी रोजी रोटी उनसे छीनने वाला ऐसा उन वर्कर्स को भी लगने लगा जो फार्मिंग लैंड में काम कर रहे थे, फार्मों में काम कर रहे थे। और दंगाइयों ने इन मशीनों को फिर तोड़ना शुरू किया। जो राइटर्स थे, जो ये वर्कर्स थे, जो अपने को रिबिलियन ग्रुप में जोड़ लिए थे, जो विरोधी हो गए थे, इन लोगों ने फिर हिंसात्मक रवैया अपनाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। बहुत सारे दंगाइयों को पकड़ा गया, उन्हें जेल हुई और कई सारे, उसमें से कई को फांसी दी गई। 450 के आसपास लोगों को देश निकाला देकर के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इसी समय एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने पूरे बदलाव को एक नए स्वरूप दिया, एक नया मूवमेंट चलाया, प्रोटेस्ट मूवमेंट, एक नए तरीके का प्रोटेस्ट मूवमेंट। जनरल नेड लूड। जनरल नेड लूड स्टार्टेड द न्यू campaign against exploitation of the industrialist. Their campaign called Ludism. लूडिज्म चलाया उसने 1811 to 1817। इस आंदोलन का तरीका अलग था। ये एक अन्य किस्म का विरोध प्रदर्शन का सबसे अच्छा उदाहरण था। लूडिज्म के अनुयायी मशीनों को तोड़ फोड़ नहीं करते थे, मशीनों को तोड़ते नहीं थे या उसमें विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उनकी डिमांड थी कि मिनिमम डेली वेजेस फिक्स कर दिए जाए। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम के घंटे को निश्चित किया जाए। मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों को काम और कानूनी तौर पर उनको मांगे मान ली जाए। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी उनको मिले। इस तरह की डिमांड लूडिज्म ने किया। लूडिज्म जो सबसे महत्वपूर्ण था, इन बातों पे ध्यान दिया कि वुमेन्स राइट्स क्या है, उनके प्रति उन्हें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। वुमेन्स राइट्स, बच्चों के हित के लिए कानून बनाए जाए। वो डेली बेसिस में एटलीस्ट मिनिमम डेली वेजेस फिक्स करने की बात गवर्नमेंट से करने लगे, उसकी डिमांड करने लगे। वो मशीनों में तोड़फोड़ नहीं, वायलेशन का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। इट वाज जस्ट लाइक ए गांधीयन थ्योरी। एक तरीके से लूडिज्म गांधीयन थ्योरी की तरह ही दिखाई देती है। बिना हिंसा के अपनी मांग को मनवाने के लिए एक नए तरीके लूडिज्म का इस्तेमाल करना। अब यहां पे लूडिज्म के थ्रू कई सारे परिवर्तन हुए। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी प्रारंभिक वर्षों में, जो वर्कर्स थे उनके ऊपर कठोर कार्यवाहियां हुई। गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उनके ऊपर ब्रूटल एक्शन लिए, बहुत ब्रूटल स्टेप लिए गए, जिससे उनके जीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया गया। वर्कर्स की कंडीशन खराब होने लगी और ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में अनसेटिस्फैक्शन तो होना ही था। इनके खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वोट देने का अधिकार था किसानों के पास, वर्कर्स के पास, और न ही उनके पास कोई लीगल तरीका था। सो 1819 अगस्त 1819 में 80,000 लोग सेंट पीटर्सफील्ड में इकट्ठा हुए
स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता, अपने लिए वोटिंग राइट्स, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसे बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए। इसी घटना को पीटरल्यू मस्केयर के नाम से इतिहास में जाना जाता है। पीटरल्यू मस्केयर यूरोपियन हिस्ट्री का एक वो काला धब्बा है जिसमें बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट ने ब्रूटल स्टेप लिया और इन वर्कर्स को, जिनकी डिमांड जिनविन थी, पूरी तरीके से दबा दिया गया। जिन अधिकारों की मांग वर्कर्स कर रहे थे, उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियमों द्वारा नकार दिया गया। गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक्ट लाई। दे डिनाइड द डिमांड विच वाज आस्क्ड फॉर द वर्कर्स इन सेंट पीटर्स फील्ड by the government. 6th act that was passed and they denied the all demands of the workers. लेकिन एक परिवर्तन हुआ। इस रोग की शुरुआत 1795 में जो ये कॉम्बिनेशन एक्ट पारित हुआ था, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स, जो निचला सदन था, को अधिक जो प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों को महसूस हुई और फिर उन्होंने इस मूवमेंट के फेवर में कुछ स्टेप लेने की बात की। 1824-25 तक आते आते एक कॉम्बिनेशन एक्ट को निरस्त कर दिया गया और फिर यहीं से कानूनों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये जो कानूनों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। अब इन लोगों को लगने लगा था कि हम कानूनों में सुधार करके ही इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। 1819 में कुछ उसके लिए उन्होंने कानून बनाया जिसके तहत 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे, 9 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे थे, उनको फैक्ट्रियों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 और 16 वर्ष की आयु के बच्चों के काम करने के घंटे 12 घंटे निश्चित कर दिए गए। जो महिलाएं थी उनको भी कुछ सुविधाएं दी गई। इस कानून में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इन कानूनों का प्रवर्तन, इन कानूनों को ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। इंग्लैंड में जो कामगारों की स्थिति, वर्कर की जो स्थिति थी, वो अत्यंत खराब होने लगी, इससे और ज्यादा खराब होने लगी और भारी फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 1833 में एक एक्ट पारित किया गया जिसके अंतर्गत 9 साल से कम बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पे लगाने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटों को सीमित कर दिया गया और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों को यह व्यवस्था दी गई कि वो इस चीज को इंस्पेक्ट करें कि ये नियम प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। बच्चों के लिए जो निश्चित नियम है, उस नियम को इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या थी इन इंस्पेक्टर्स के लिए। ये इंस्पेक्टर्स जो कानून बने, फैक्ट्री निरीक्षकों को जो व्यवस्था दी गई, इसमें कहा गया कि जो घंटे जो 1847 में 30 वर्ष से अधिक लंबे अरसे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। 10 आवर्स पॉलिसी पारित की गई और इस कानून के तहत स्त्रियों, युवकों के लिए काम के घंटे को सीमित कर दिया गया। पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे दिन के निश्चित किए गए काम करने के लिए। और यहां पे जो व्यवस्थाएं बदल रही थी, इसकी सबसे बड़ी कमी थी, प्रॉपरली इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही थी। इंस्पेक्टर्स फैक्ट्री ओनर से, इट मीन्स मैनेजर से पैसे लेकर के मुंह बंद कर लेते थे। वो कानूनों को ठीक से पारित हो रहा है, चल रहा है, इन्फोर्स हो रहा है और नहीं, इसको वो आंखें मूंद करके ओके कर देते थे। इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ी। एक और बड़ी समस्या थी कि अब 9 साल से कम उम्र के बच्चों को या जो छोटे उम्र के बच्चे थे जिनको फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किए गए थे 1847 में, जो ये कानून बना दिया गया था कि 18 ईयर से कम आयु के जो बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं वो 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम उनसे न लिया जाए। इस कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों द्वारा ठीक से कराया नहीं गया। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक इंटरेस्टिंग मैटर ये जुड़ गया कि जो इनके पेरेंट्स थे वो खुद अपने बच्चों की आयु ज्यादा बताते थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते तो घर की इनकम ठीक से नहीं चल पाती। और इन सारी चीजों को मैनेज करने का काम इंस्पेक्टर कर रहे थे, जो बड़ी संख्या में घूस ले रहे थे। एक्चुअली इंस्पेक्टर की जो सैलरी थी वो कम थी, तो मैनेजर्स के द्वारा ये ब्राइब जो दिए जाते थे वो खूब लेकर के इनके सारे अनर्गल कामों को सही कर देते थे।
जो सुधार हुए कानूनों के जरिए, जो बदलाव हुआ कानूनों के जरिए, उसके बाद भी कमोबेश परिस्थितियां वैसी ही बनी रही जैसी चल रही थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कानूनों में रिफॉर्म अकॉर्डिंग टू लॉ इंग्लैंड में हुए। These are all, it is very interesting. When you read this paragraph, you can easily understand the actual matter which was happening that time. It was not a new, it was also continuously run till today. The exploitation of worker, exploitation of women worker, that is continuously run. आज भी चल रहे हैं। उसमें थोड़े ज्यादा थे, आज कुछ नियम और कानून बन जाने के कारण उस पर कंट्रोल किया गया। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।